Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. There is always anxiety in people what is in store from State Bank of India. Some people will feel how many people will retire in State Bank of India. Now that data is already in public domain. How? They have launched a VRS scheme. In that, people those are retiring in next 5 years are eligible because age cap is 55 to 60 with 25 years of service, and they have estimated 30,000 employees are eligible. So now you know how many employees are going to retire in 5 years in State Bank of India. They all have been offered VRS. Is it clear? That means 30,000 in 5 years. So what is the average? 6,000 per year. But why they are recruiting 8,600 as clerks and 3,500 at CBO? How much is this number? This is around 12,000. Only 30,000 people are going to retire in next 5 years in State Bank of India as per their offer of VRS. But they are taking in this year itself 12,000 employees. So how many vacancies will come in future? The people those are arguing with me, sir, you are saying after 2023 there will be very less vacancies. These 3 years you should work hard. There are vacancies. You can get clear picture. Now this crystal clear. If SBI officially announces that only 30,000 people are eligible, those are going to retire between now and next 5 years. Because the age criteria is 55 and 60. That means they have worked out the people, those are going to retire this year up to 5 years. So if only 30,000 people are eligible for VRS, that means only 30,000 people are going to retire in 5 years in State Bank of India. And already a process is there where they are taking around 10 to 12,000 employees. What is the fate of recruitment in State Bank of India in future years? You can know. That means the VRS will only help them to take more people in recent years as compared to future years. I think the things are very clear. Every logical person can understand these calculations. And this I told you well in advance just to make you mentally prepared what is going to happen in future so that you work hard these years and get your entry into banking. Now some people say, sir, how it is possible? Why vacancies will vanish? No answer for that. In banking, recruitment is always replacement of retirements. This we have to cast in our mind and be always aware of this. So if by any process we are preponing the retirement, preponing means VRS means we are asking people to retire today, those are likely to retire within 5 years. Naturally, it will create vacancies today, but it will eliminate vacancies in future. I think it is a very simple arithmetic and everybody can very easily understand that. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब मैंने पिछले 6 महीने पहले आपको ये बताया था कि जो ज़्यादा पोजीशन है वैकेंसीज की वो क्या होगी, साल दर साल बैंकिंग में घटती जाएगी और 2023 के बाद काफ़ी कम चांसेस हैं वैकेंसीज आने का. उस समय काफ़ी लोगों ने मेरे साथ आर्गूमेंट किया. काफ़ी लोगों ने कहा कि सर
अगर ऐसा कैसे हो जाएगा? बैंकिंग में तो हमेशा बहुत वैकेंसी आती है। अब आपने देख ही लिया इस साल कितनी वैकेंसी आई है। अभी एक डेटा मैं आपके सामने और पेश कर रहा हूं। स्टेट बैंक जो वीआरएस स्कीम लाया है उसमें उसने 5 साल तक जो लोग रिटायर होने वाले हैं उनको एलिजिबल बनाया है, 55 साल से 60 साल की उम्र के लोग। इसका मतलब ये वो लोग हैं जो या तो अगले साल रिटायर होने वाले हैं या अगले 5 साल तक रिटायर होने वाले हैं। कितने लोग निकले हैं? ये 30,000 लोगों को ये ऑफर किया। इस साल कितने लोगों की भर्ती हो रही है? 8,600 क्लरिकल में, 3,500 सीबीओ में। कितना हो गया? लगभग 12,000। 5 साल में 30,000 लोग रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल हैं। पर ईयर कितने हुए? 6 पंजे 30, 6,000 पर एनम। 12,000 इसी साल ले रहे हैं। 80% रिप्लेसमेंट पॉलिसी है स्टेट बैंक की। तो फ्यूचर में कितनी वैकेंसीज आएंगी? सिंपल अरिथमेटिक है। अब वीआरएस से स्टेट बैंक क्या कर रहा है कि जो लोग फ्यूचर में रिटायर होने वाले थे उनको वो अभी रिटायरमेंट का मौका दे रहा है। तो इससे क्या होगा? जो वैकेंसी फ्यूचर में अराइज होनी थी वो 2021 में अराइज हो जाएंगी। अब क्योंकि वो स्कीम रोलिंग है तो पहले साल हाईएस्ट रिटायर हो जाएंगे क्योंकि 5 साल के लोग एलिजिबल होंगे, पर अगले साल से तो एक ही साल और ऐड होएगा ना। मींस जो 6वें साल रिटायर होना था वो उस स्कीम में एलिजिबल हो जाएगा। बाकी तो पहले से ही एलिजिबल हो चुके, वो अपना डिसीजन ले चुके। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो आपको बताई जाती हैं वो एक अनुभव के अधीन पर बताई जाती हैं। कुछ लोग उसको मानते हैं, उसको विश्वास करते हैं और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेके उसका फायदा उठा लेते हैं। कुछ लोग आर्गुमेंट के मूड में चले जाते हैं। कुछ लोग फैलाने लगते हैं कि वो जो कह रहे हैं कुछ सच नहीं कह रहे हैं, क्यों विश्वास करना? अरे इसको मेरे पे विश्वास करो या ना करो, इसमें मुझे क्या फायदा होने वाला है? विश्वास करोगे तो आपको फायदा होना ना। जो चीज घटने जा रही है वो मैंने आपको पहले बता दी तो आपको फायदा होएगा। आप सावधान रहोगे, उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाओगे, आपको फायदा होगा ना। सडन शॉकर आएगा तो नुकसान होगा। अब लास्ट ईयर क्लरिकल में 19,000 वैकेंसीज थी आईबीपीएस में। मैंने साल के शुरू में बता दिया कि लगभग 8,000 हो जाएंगी। लोग मेरे से बहस करने लगे 19,000 से 8,000 कैसे हो जाएंगी, क्या कह रहे हो सर आप? अब 1,500 आ गई। अब भी मैं कह रहा हूँ ये 8,000 तक पहुंच जाएंगी। अब वही लोग मुझसे बहस कर रहे हैं 1,500 से 8,000 कैसे हो जाएंगी। देखो बहस ही करनी है सिर्फ। जब 19 थी तब मैंने कहा 8,000 तक आ जाएंगी, तो नहीं हो सकती सर, 19 से 8 कैसे हो जाएंगी? नहीं होंगी ना, सही आपकी मर्जी है। अब वो 1,500 आ गई। अब मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि 8 के आसपास पहुंच जाएगी। उसका एक वीडियो मैंने आज सुबह ही डाला है। अब वो बहस कर रहे हैं 8 कैसे हो जाएगी। ये आपके मानने या मेरे मानने से नहीं होंगी, जो फैक्ट्स है उससे होंगी। वैकेंसी अगर क्रिएट होगी तो भरी भी जाएगी। मीन्स जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होगा कुछ तथ्यों पे आधारित होगा, आपके मेरे कहने से नहीं वो हो जाएगा। और वो क्या तथ्य हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो लोग ये मानते थे नहीं 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 स्टेट बैंक में तो बहुत रिटायरमेंट है सर, अब आपके सामने आंकड़ा आ गया ना। 5 साल में 30,000 है, क्या एवरेज हुई 6,000। अभी तक कितनी भर्ती कर आ रहा है स्टेट बैंक हर साल? 8,000 के करीब क्लर्क, 2,000 के करीब पीओ, 10,000 पर एनम। तो 5 साल में 50,000 होने चाहिए ना। पर रिटायर ही सिर्फ 30,000 हो रहे हैं अगले 5 साल में। तो ये आंकड़ा मेंटेन रह सकता है अगर उसकी 80% पॉलिसी है। अगर 30,000 लोग एलिजिबल हैं, चाहे वो वीआरएस लेंगे या नहीं लेंगे, रिटायर तो 30 ही होंगे ना इसका मतलब। और 80% उसकी पॉलिसी है रिप्लेसमेंट की, मीन्स 24,000 लोग लेने हैं उसने 5 साल में। तो पर एनम कितने लेने हैं? सेम लेवल ऑफ वैकेंसी कैसे मेंटेन होगा? ये
जो बातें होती हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, ताकि अभी से आप अपने कैरियर का डिसीजन ले लें और उस दिशा में मेहनत करें जिस दिशा में कुछ होने वाला है। मतलब ये ना इनकरेजमेंट के लिए ना डिस्करेजमेंट के लिए, ये हार्ड फैक्ट्स हैं और इन हार्ड फैक्ट्स को ऊपर अगर हम चलेंगे तभी हम कामयाब होंगे। क्रिटिसिज्म सबसे आसान तरीका होता है, किसी का कोई भी क्रिटिसिज्म कर सकता है 2 मिनट के अंदर, कोई मुश्किल काम नहीं है, जवान हिलानी है सिर्फ। पर समझदारी होना, तथ्यों को इकट्ठा करना, लोगों की मदद करना, ये सबसे कठिन काम है। लोगों को सही रास्ता दिखाना, उनको सही रास्ते पे चलाना, ये कठिन काम है, हर आदमी नहीं करता है। मजाक उड़ाना सबसे आसान है, किसी की खिल्ली उड़ा लेना आसान है, किसी को क्रिटिसाइज करके पैसे कमा लेना आसान है, मेहनत करके पैसे कमाना मुश्किल है। कंटेंट देना मुश्किल है अपने वीडियो के अंदर, किसी का मजाक उड़ा के पैसे कमा लेना आसान है। गॉड ब्लेस यू ऑल।